Okay, good morning, everybody. It's lecture time now. Enough of waiting for other people. I have to begin my lecture with one very good news to all of you. The good news is that today I'm going to take two lectures. One, this lecture which is going on up to 11 o'clock, and the other lecture of Vikas sir at 2:45. I'm going to take up that lecture also. Today I would take up two lectures. One 9:30 to 11 and other is from 2:45. Okay, so dear friends, in our lecture today, we are going to discuss the chapter called as Death of Partner. See, whenever we observe death of partner, I would definitely say and always emphasize on one important point that death of partner is nothing else but it is a natural form of retirement. In case of retirement of partner, the partner retires by his own wish and will. But in case of death of partner, the partner retires as per the wish, or we can say as per the act of God. So यहाँ पे accounting treatment is almost same except the treatment of capital account. देखो, in case of retirement of partner, रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट ड्यू रहता था, whatever amount due to the retiring partner, where do we transfer that amount due to the retiring partner? To the loan account, right? That means, in fact, I can say to partners loan account, retiring partners loan account. But in event of death of partner, in the case where the partner has died, the amount due to the expiring partner, the amount due to the expiring partner is transferred to his legal representative's account or legal heirs account. The amount due to him is transferred to legal heirs account. Very important. Or we can say executor's account. इस कंसेप्ट के अंदर एक बात नया क्या आता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, अभी सपोज द ईयर एंड इज ऑन 31st March, and in December one partner says, I want to retire. The other partner can say, अरे अभी 3 महीना बचा है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने को, तब तक कंटिन्यू करो. You continue till the year end. It can be requested to him. But अगर कोई पार्टनर
दिसंबर में एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई यू शुड लिव अलाइव अप टू ईयर एंड. द पार्टनर कैन डाई इन बिटवीन द ईयर ऑल्सो. यूजुअली रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता है. द पार्टनर इज कन्विंस्ड टू कंटिन्यू अप टू ईयर एंड. ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी वो बीच में भी रिटायर हो सकता है, इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए रहेंगे. इन बिटवीन ही में रिटायर, बट द अदर पार्टनर्स कैन कन्विंस हिम कि भाई तुम ईयर एंड तक तो कंटिन्यू कर लो, फिर हम कंक्लूड करते हैं, देन यू रिटायर. तो डेथ कैन बी एनी टाइम बिटवीन द ईयर. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कैलकुलेशन ऑफ आप अपने बुक में हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ expiring partners share of profit. Calculation of expiring partners share of profit. अभी ये जो एक्सपायरिंग पार्टनर शेयर रहेगा इज इक्वल टू बेस प्रॉफिट इनटू आई कैन से डीपीएस. डीपीएस मतलब डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर. डीपीएस मतलब डिसीज्ड, मतलब जो पार्टनर एक्सपायर हो गया है वो, उसका शेयर. Just hold on, I'm logging on to some other computer also so that. Okay, so base profit into deceased partner share into duration upon 12. मतलब it will include the duration for which the partner was there into the business upon 12. जैसे if that partner retires on 30th September, so year beginning is April, May, June, July, August, September. He was there in the business for 6 months. So into 6 upon 12.
इंटू 6/12। ये बेस प्रॉफिट क्या रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. इट विल ऑलवेज बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल of the business for previous year is rupees 1,25,000 and partner dies after 3 months of close of previous year. His share was 4/10 in the profit. Calculate his share of profit. अभी पूरे बिजनेस का देखो कुछ बोला नहीं है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमको एक हिंट दिया है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करो. सो द बेस प्रॉफिट इज 1,25,000. तो दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू बेस प्रॉफिट 1,25,000 into his share 4/10 into he was there in the business for 3 months. So into 3/12. 4 ones are 4 threes are 3 cancel 0 cancel. So it would be rupees 12,500. It would be rupees 12,500. Is that okay? ये पार्ट आपको समझा सबको? Now we take second example. Let us take example A, B, and C, where partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C died on 30th June 2020. Sales for the year 2019-20 were rupees 8 lakh.
and profit for the same period was rupees 1,20,000. Sales from 1st April 2020 to 30th June 2020 were rupees 2 lakh. Calculate C's share of profit. अभी हमको यहाँ पे देखो प्रॉफिट पिछले साल का दिया है, तो हम क्या पिछले साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? Then my answer to that is no, क्योंकि हमको प्रॉफिट के साथ सेल्स दोनों दिया है. ओके, तो वी कैन से देखो सॉल्यूशन में 2019-20 sales is equal to rupees 8 lakhs. Profit is equal to rupees 1,20,000. Therefore, profit percentage is equal to profit upon sales multiplied by 100 is equal to 1,20,000 upon 8 lakhs multiplied by 100. 0, 0 cancelled. 0, 0 cancelled is equal to 120 upon 8 is equal to 15%. So the business earned profit at the rate of 15% in the last year. So I can say sales April to June is equal to 2 lakhs. Therefore, profit at the rate of 15% is equal to rupees 30,000. समझा कैसे? Have you understood how I got that? हम assume कर रहे हैं कि same profit percentage is calculated. So 2 lakh का 15% 30,000. Therefore, C's share is equal to 30,000 into. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें
और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। The ratio between them is 1/6 into April, May, June. 3/12. 3 ones are 3 fours are is equal to 30,000 upon 24 is equal to 15,000 upon 12 is equal to, I got is 1,250. Do you get this answer? ये इसका सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया। दूसरा शॉर्टकट मेथड, सेल्स प्रॉफिट। सेल्स 8 lakh, profit 1,20,000. Sales 2 lakhs, profit X. Can we find out the value of X? ये शॉर्टकट मेथड है। Can we find out the value of X? X is equal to 1,20,000 into 2 lakhs upon 8 lakhs. So in fact 2,40,000 divided by 8. Again you get 30,000 as the profit, जो हमको यहाँ पे भी मिला था। Are both these approaches clear to all of you? प्रॉफिट कैलकुलेशन के दोनों अप्रोचेस समझे आपको? अभी डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको रहेगा, दैट वुड ऑलवेज बी विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इट विल ऑलवेज बी विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैंने स्क्रीन बंद किया है, डोंट से हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैंने बंद किया है। जब जरूरत रहेगा आई विल स्विच इट ऑन। तो यहाँ पे जब कभी भी हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा, तो यहाँ पे आपको पता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड है, मैंने आपको बताए थे, हमने डिस्कस किए हुए ऑलरेडी। 3 मेथड वहां पे। पहला मेथड होता है प्रीमियम मेथड। यहाँ पे अभी जब एक एग्जाम्पल आप लिखो, मैं डिस्कस करता हूं। X, Y and Z X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses
in the ratio of 3:2:1. They took joint life policy of rupees 3,60,000. Z dies. बस इतना इंफॉर्मेशन दिया है आपको। अभी आप याद रखो कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा, कोई भी पार्टनर एक्सपायर होगा, तो what the insurance company will have to do when there is joint life policy taken up? What the insurance company will do? कुछ नहीं करेगा, किसी को भी नहीं पता है। देखो, जब कभी भी पार्टनर्स ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाला हुआ है, एंड इफ अ पार्टनर डाइज, देन द इंश्योरेंस कंपनी will have to pay the sum assured to the firm. पॉलिसी रिटर्न नहीं, उन्होंने जितने का पॉलिसी निकाला है उतना पैसा देना पड़ेगा। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, retirement, it may not be given because the partner is alive. लाइफ पॉलिसी का पैसा तभी मिलता है जब पार्टनर एक्सपायर होगा। तो अभी यहाँ पे पार्टनर एक्सपायर हो गया, तो द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे द sum assured. What was the sum assured? Do you know what is the meaning of sum assured? Sum assured का मीनिंग पता है आपको? Very good. The amount insurance company assures to pay in case of death, that is in fact the amount of which the policy has been taken. Very correct, Disha. Very correct. तो अपने यहाँ पे पॉलिसी का अमाउंट कितना था? What was our amount of policy in this case? 3,60,000, right? तो अभी जब कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया है, जस्ट होल्ड, मोटर बंद करने का, मैं भी उसके लिए ही फोन किया, पानी बह के जा रहा है। ओके, सो इन केस ऑफ death of Z, will the insurance company pay that amount to us or not? They will have to. They will have to pay that amount. उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो अपने पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पैसा जब आया, तो बैंक में इंश्योरेंस कंपनी विल नेवर पे इन कैश, इट विल ऑलवेज पे इन चेक। तो बैंक में पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड,
टू, किस चीज का पैसा आया अपने पास? ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। So what should be the first entry? What should be the first entry? Bank account debited to joint life policy account. Bank account debited to joint life policy account. How much would be the amount? Bank account debited to joint life policy account. The policy amount was 3,60,000. That entire amount would be given up. एंड फिर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,60,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3,60,000। एंड हम लोग ये फिर 3,60,000 हम लोग क्या करते हैं? वी डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो एंट्री वुड बी JLP account debited to X capital, to Y's capital, to Z's capital. 3,60,000 divided by 660,000. So 1,80,000, 1,20,000 and 60,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में। इज दैट ओके? ये होता है अपना फर्स्ट मेथड, जहां पे खाली प्रीमियम पेड का ही रिकॉर्डिंग होता था। इज दिस फर्स्ट मेथड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझा सबको? अभी दूसरा मेथड क्या होता है? दैट समटाइम्स द बिजनेस कैन मेंटेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। X, Y, and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They took joint life policy for rupees 3,60,000, which was appearing in the balance sheet at surrender value rupees 30,000.
जेड डाइस। तो अभी देखो डेफिनेटली यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन्ड है। इट इज appearing into the balance sheet at 30,000। तभी डेफिनेटली पहला एंट्री रहेगा हमको, पार्टनर डाई हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3,60,000। एंड अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू एक्स टू वाई टू जेड। देखो 3,60,000 में से 30,000 ऑलरेडी अपियरिंग है, वो अपियर होता है एसेट साइड में हमेशा। तो 3,30,000 आएगा उधर। 3,30,000 divided by 6, it is 55,000 multiplied by 3, 1,65,000, 1,10,000, 55,000। Do you get this concept? वो 30,000 ऑलरेडी एसेट में मतलब डेबिट में अपियरिंग था, तो हमने उसको कंसीडर कर दिया। Is that okay with all of you? सेकेंड मेथड समझा? अभी तीसरा पार्ट होता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी बैलेंस शीट में अपियर होता है बट विथ अ रिजर्व। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी अपियर होता है विथ रिजर्व। सेम कंसेप्ट रिजर्व के साथ में अपियर करेगा तो कैसे रहेगा देखते हैं हम। देखो जैसे XYZ आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They took joint life policy of rupees 3,60,000, which appears in balance sheet at surrender value rupees 30,000, along with reserves। कितना दे दिया, मतलब अभी सरेंडर वैल्यू पे भी मेंटेन हुआ है और रिजर्व भी मेंटेन किया है। तो पहला पार्टनर एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे जेड डाइड। तो जब पार्टनर एक्सपायर होगा तो सबसे पहले तो हमको कैश मिलेगा, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3,60,000। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू X टू Y टू Z 3,30,000, क्योंकि 30,000 एसेट में अपियर हो रहा है सरेंडर वैल्यू पे। तो हमने निकाला था 1,65,000, 1,10,000,
55,000, राइट। और तीसरा अभी रिजर्व भी है। रिजर्व हमेशा किधर रहता है? वेयर डू वी ऑलवेज फाइंड द रिजर्व्स? Where do we always find the reserve? Reserves are always found on liability side. तो वो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। JLP रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू X टू Y टू Z। रिजर्व में भी जितना सरेंडर वैल्यू रहेगा उतना ही रहेगा। 30,000 इंटू डिवाइडेड बाय 6, 5,000 into 3, 15,000, 10,000 and 5,000. 3:2:1 का रेशियो। It appears on the liability side। और हमने वो लायबिलिटी मतलब वो रिजर्व, जैसे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Is that okay with all of you? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पार्ट आपको समझा? 3 ट्रीटमेंट है। पहले प्रीमियम मेथड होता है, दूसरा सरेंडर वैल्यू मेथड होता है, तीसरा रिजर्व मेथड होता है। प्रीमियम मेथड में बैलेंस शीट के अंदर वो रहेगा ही नहीं, मतलब कैश आया उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सरेंडर वैल्यू मेथड में कैश आया उसमें से सरेंडर वैल्यू माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा रिजर्व मेथड में कैश आया, सरेंडर वैल्यू माइनस करके डिस्ट्रीब्यूट किया और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। ये 3 पार्ट रहेगा। समझ रहे हैं सबको?